So good evening, everyone. In the last class, we started with logarithm 1, first lecture of the logarithm. There we have understood from where this logarithm, this log term has come. So we came to know that the term which are in exponential form, which looks like this, 5 square equal to 25, 3 to the power minus 2 is 1 by 9. Any number raised to some number equal to b. Such type of expressions are said to be in exponential form. We can convert these exponential forms equation into logarithmic form. How do we convert them into logarithmic form? तो जो पावर होता है उस पावर को वहीं पर रखना है, 2 इक्वल टू यहाँ पर -2 इक्वल टू यहाँ पर 2 इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू. बाद में जो राइट साइड में सिंगल नंबर है उसके साथ लॉग लेना है. तो आप देखो log 25, log 1/9, log 100, log b. तो फिर क्वेश्चन आएगा कि 2 हो गया, ये हो गया, इस बेस का क्या करेंगे? तो उस बेस को हमको लॉग का बेस बना देना है. तो ये जो 5 है वो लॉग के बेस में आ गया 5, 3 लॉग के बेस में आ गया, 10 लॉग के बेस में आ गया, a लॉग के बेस में आ गया. This way we convert exponential form into logarithmic form. Exponential form into logarithmic form. I hope there is no doubt in converting exponential and logarithmic. Example, yesterday we have seen x raised to 3 equal to y. So 3 is equal to log of y to the base x. Similarly, sometimes we are also asked to convert logarithmic form into exponential form. उसके लिए क्या करना होता है? अभी logarithmic से exponential करना है, इसका मतलब मुझे log डिलीट करना पड़ेगा. तो देखो ये इक्वेशन में कैसे करेंगे. जैसे अगर ये इक्वेशन दिया होता और मुझे एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करने को बोलता, तो व्हाट आई वुड हैव डन, डिलीट द लॉग, ये जो बेस x से उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा x रेज टू 3 और इसको पावर में ले लो, x रेज टू 3 इक्वल्स टू y. यस, तो ये सारे क्वेश्चंस उसी तरीके से बैक कन्वर्ट हो जाएंगे. 5 रेज टू 2 इक्वल टू 25, 3 रेज टू -2 इक्वल टू 1/9, 10 raised to 2 equal to 100, and a raised to x equal to b. This way we convert exponential to logarithmic and logarithmic to exponential, right? After that, we have defined this log term. So the definition goes like this, that if a raised to x is equal to b is an exponential form, then it can be written as x is equal to log b to the base a. The only condition on this b and a, try to see what exactly is b and a. log जिसका फाइंड कर रहे हैं वो है b, बेस है a. यहाँ पर a और b, तो x कुछ भी हो सकता है, बट a और b कभी भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता. और a के ऊपर तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है कि a पॉजिटिव तो हो सकता है, बट पॉजिटिव में बहुत सारे नंबर आते हैं, 1 भी पॉजिटिव है, राइट, बट 1 नहीं हो सकता, यानी a सारे पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट 1. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम. उसके बाद वी स्टडीड 3 लॉज ऑफ लोगैरिथम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज. लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कोशेंट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आपको लॉग फाइंड करना है दो नंबर के प्रोडक्ट का, ब्रैकेट के अंदर है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करो फिर लॉग फाइंड करो. उससे अच्छा एक शॉर्टकट ये है, मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए आप लॉग m सेपरेटली निकालो, लॉग n सेपरेटली निकालो और दोनों को ऐड कर दो. मल्टीप्लिकेशन inside the log will become plus. Similarly, if you want to find out log of m divided by n, then we can separate them, log m log n, but separated by minus. So this is a rule that log of mn is log m plus log n, log of m upon n is log m minus log n.
यू कैन सी द बेस इज द सेम, जो पहले लेफ्ट में बेस है वही बेस दोनों को जाएगा। लास्ट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर मैं जिसका लॉग फाइंड कर रहा हूं उस नंबर के पावर में अगर कोई नंबर हो, उस नंबर के पावर में कोई नंबर हो, तो हमको उस पावर को लॉग के पहले लिख सकते हैं। लॉग ऑफ m रेज टू n है, उसको हम लिख सकते हैं n log m। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो these are three very important rules, students. Before I go for the properties, one more thing I would like to explain here, that these all three rules are true, in a vice versa condition. Like if you have two log terms separated by plus, I can combine them and I can write it into multiplication. If I have two log terms separated by minus, I can write them as m upon n. If I have a log and I have a number before it, I can take to the power of that m. सो बोथ वे इट इज राइट। प्रोडक्ट है तो प्लस कर सकते हैं, प्लस में है तो प्रोडक्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि सिंगल लॉग टर्म में कन्वर्ट करो। अभी सिंगल लॉग टर्म का मतलब क्या हुआ, प्लस में है ना, तो ये तो दो लॉग टर्म है, इसको सिंगल में कैसे करेंगे, प्लस है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो डिवाइड, और आगे नंबर रहेगा तो उसको पावर में ले लेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके। Then we studied about few properties of logarithm. The first property, log of negative number is not defined. We cannot find out the log of negative number. Second, log of 1 to the base any number. Yes, log of 1 to the base any number is always 0. The only condition is this base cannot be 1. Yesterday we have seen the reason for that, why it cannot be 1. थर्ड प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस ऑफ सेम नंबर। आप जिसका लॉग फाइंड कर रहे हो बेस में भी अगर वही है तो इसका आंसर हो जाता है 1। जैसे कि एक सम आपने अभी किया था, उसमें लिखा था ln ऑफ e इज 1। क्यों ये 1 हुआ था बताएं? क्योंकि ln का मतलब होता है log टू द बेस e। तो ये तो हुआ ln और e तो पहले से है, तो ये क्या बन गया, log ऑफ e टू द बेस e, यानी log ऑफ अ नंबर टू द बेस ऑफ सेम नंबर। तो फिर डेफिनेटली वो सेम है तो आंसर क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर कोई नंबर है 5, उसके पावर में log है और उस log का बेस भी है 5, तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाता है। यहाँ जो आगे नंबर होता है बस वही आपके सामने आ जाता है 7। दिस इज फोर्थ। एंड द फिफ्थ, अगर आपके पास दो लॉग के टर्म्स हैं, दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल टू साइन है, तो हम लिख देंगे log m इक्वल टू log n होगा, इसका मतलब m इक्वल टू n हो जाएगा। So these are the 5 properties which we have studied yesterday. After that we have studied a shift of base law. Shift of base law क्या होता है, अब यहाँ पर एक log का टर्म है log b to the base a, but I don't want this a, I want to change the base. So the rule says that you can separate log b and log a. I took log b and log a here, and then you write the base whatever you want. You want the base as c, write c. If you want the base as d, write d. Whatever you want to write, you write it down. And if you don't want to write it down, don't write anything. Just consider that the base is e, right? And lastly, we have studied about common logarithm and natural logarithm. Common logarithm usually हम जो फिजिक्स केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करने वाले हैं उन सब में हम कॉमन लोगैरिथम यूज करने वाले हैं। कॉमन लोगैरिथम का एक ही फंडा है कि जो भी लॉग होता है उन सभी लॉग में बेस 10 ही होता है। So whenever I say common logarithm, the common logarithm is considered as logarithm to the base 10 and natural logarithm is considered as a base as e. Base as e का अगर log के आगे base नहीं लिखा है, it is considered as e, right? And this log to the base e can also be written as ln. इस तरीके से हमने common logarithm और natural logarithm भी हमने लास्ट लेक्चर में लर्न किया था। आई होप देयर इज नो डाउट इन द लास्ट क्लास, एवरीथिंग इज क्लियर। हम लोग ने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी कर लिया था, राइट? ओके।
So logarithm, second lecture. Now we have seen the laws of logarithm, right? Now in laws of logarithm students, थोड़ा सा मैं और उसके ऊपर हाईलाइट करना चाहूँगा. Just try to answer me. Log of m plus n to the base b. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, बताओ. Log of m to the base n. What can we write? Come on students, answer. Log of m plus n can be written as, Arafat has answered me, it is log m to the base b into log n to the base b. Priya has answered me, log of mn to the base b. Prem has answered log m to the base e into log n to the base e. Saisha has answered me, log m to the base b plus log n to the base b. ईशान का आंसर ये है, log m, no sorry, not this, first one. आप सबको मैंने ही पढ़ाया, एक ही बार पढ़ाया सबको, but I can see here 4 different answers here. And for your kind information, all these answers are wrong. Anish also wrong. वो तो तुमने शिफ्ट ऑफ बेस लॉ अप्लाई किया ना, वो ठीक है, बट ऐसे सेपरेट में क्या करेंगे वो बताओ ना. शिफ्ट ऑफ बेस लॉ तो ऑब्वियसली वो अप्लाई कर सकते हैं. तो देखो हमने कल का पूरा लेक्चर लिखा, आज भी इतना रिवाइज किया मैंने, फिर भी इस सम के 4 आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों से. इसका मतलब या तो मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया नहीं, आपका जो डाउट होता है उसको मैंने अच्छे से क्लियर नहीं किया, या तो आप फिर मुझे सीरियसली ध्यान से नहीं सुनते. आपको लगता है इजी इजी है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बट आप किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट को स्ट्रांगली होल्ड नहीं करते. यस, तो इनमें से क्या रीजन है? मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये रीजन है कि आपने बराबर से ध्यान नहीं दिया? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग साइशा. Yes, anyone else? ऋषिकेश किधर गया, आज नहीं दिख रहा है ऋषिकेश. Is not in lecture, I think. Come on, answer. It would be inverse of log mn base b, right? No, it's not even inverse. Inverse, my god, मैंने तो वर्ड भी नहीं यूज किया था लेक्चर के अंदर.
नए नए वर्ड सुनने मुझे मिल रहे हैं। इनवर्स ऑफ लॉग, अभी तक तो मैंने वहां तक पहुंचा भी नहीं हूँ। नो हर्षित, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। चलो लास्ट 1 minute नाउ, लास्ट 1 minute गिवन टू यू ऑल। यस, सो फाइनली अनीश हैज आंसर दैट सर, इतने सारे आंसर बोल दिए, अब ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर इज नो आंसर, राइट? कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा। यस, एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट। You cannot solve log of m plus n to the base b. You cannot separate them. वही मैंने बोला ना, आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो। रूल क्या है बच्चों? लॉग होगा, लॉग के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन होगा, लॉग के अंदर, तो उस मल्टीप्लिकेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से, प्लस में। और अगर उल्टा देखूं तो, मैं उल्टा देखूं तो, दो लॉग के टर्म्स हैं, दोनों प्लस से सेपरेट होंगे, दोनों का बेस सेम होगा, तो उसको कंबाइन करके मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, राइट? तो यहां पर आप डिफरेंस नहीं समझ रहे हो। लॉग ऑफ m प्लस n किधर है, और लॉग ऑफ m इंटू n कहां पर है, राइट? So log of m plus n cannot be separated as log m, log n, plus, minus, multiplication, division, कुछ भी नहीं हो सकता, nothing. You cannot solve this. ईशान का क्वेश्चन है, लॉग कॉमन ले सकते हैं क्या? तो मुझे बताओ ईशान, हम साइन सी प्लस साइन डी पढ़े थे, याद आ रहा है? अगर साइन साइन कॉमन ले सकते होते तो ये कितना सिंपल हो गया होता, साइन सी प्लस डी, है कि नहीं? बट ऐसा था क्या? नहीं। हमने बड़ा सा फॉर्मूला पढ़ा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, राइट? तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, देखो कॉमन कब होता है? आप देखो क्वेश्चन में क्यों ऐसा बता रहा हूँ, गॉट इट? नहीं, वो तो समझ में आ जाएगा, मैंने एग्जाम्पल ऐसा दिया तो। बट वेन यू आस्क अ क्वेश्चन, यू शुड आस्क योर सेल्फ कि ये क्यों नहीं होगा कॉमन, राइट? अभी अगर मैंने लिखा ए एक्स प्लस ए वाई, इसमें तो ए कॉमन होता है सर। आप बोलते हो इधर साइन कॉमन नहीं होता, लॉग दो टर्म रहेगा तो कॉमन नहीं होता, क्यों नहीं होता है भाई? इधर आप बोलते हो होता है, इधर बोलते हो नहीं होता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? यही तो सीखना है अपने को। क्या बताओ, बताओ मुझे, चलो। ए एक्स प्लस ए वाई में ए कॉमन ले सकता हूं मैं, साइन सी प्लस साइन डी में साइन कॉमन क्यों नहीं ले सकता? लॉग एम प्लस लॉग एन में लॉग कॉमन क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज ऑफ फंक्शन। तो ये भी तो फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स और वाई। Very true, Harshit. Because here sine C is not two term as sine and C separate. Here sine D is not two terms, sine and D separate. It is considered as one term because without the angle, sine doesn't have a meaning. So when it is a one term, how can you take a common from that? But here, when we say ax, it is a into x. It's a two different terms multiplying each other. Here, there is no multiplication of sine in and c. It's not sine into c. It's sine of c. It's sine of d. But here we say a into x plus a into y. So when we have a different terms, then definitely we can take common, right? I hope with the doubt of Ishan, बहुत लोगों का कुछ concept clear होगा, right? कुछ लोग, बहुत लोग को ये understanding ऐसा ही रहता है जैसा मैंने बताया।
सो इसके लिए लॉग भी जो है, अकेले लॉग का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। लॉग क्या, इसका कोई मीनिंग नहीं है अंटिल वी राइट सम नंबर बिफोर इट। हाँ, बेस नहीं लिखा तो चलता है, क्योंकि बेस नहीं भी लिखा तो हमको मालूम है बेस तो ही होता है ना, बट उसके आगे कोई तो नंबर होना चाहिए। इसका मतलब log 5 is a single term, it's not two terms. So when it's not two terms, how can you just take log common, right? तो ये सारे आंसर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि log ऑफ m प्लस n सेपरेट नहीं होता है, m इंटू n सेपरेट होता है। क्लियर? तो ये सब के सब रॉन्ग। फाइन, वन मोर एग्जांपल, आंसर मी। How do we combine them? How can we combine them? Come on. I want to convert them as single log term. एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। Come on, students. Last 1 minute to think. Yes. So many of you are answering not possible, and it's absolutely correct. We cannot do that, because when we have two separate log terms, we want to combine them. Either we should have plus or minus. If it is plus log m plus log n, then I may write it as log of mn to the base b. And if it is minus, I may write it as log of m upon n to the base b. But when it is multiplication, it is written as same. We cannot do anything. We cannot do anything here. Right, students? क्लियर? ये क्या पॉसिबल हो सकता है, कब पॉसिबल नहीं हो सकता? कोई भी कंफ्यूजन अभी भी है आपके माइंड में तो मुझसे पूछ लो।
Usama Kalundra sir not understood what? कोई रूल नहीं है इसके लिए क्रिश, इट्स कैनॉट बी, इट कैनॉट बी डन. तो सिंपल आपको याद रखना है, एक ही शॉर्टकट है उसामा. इफ यू हैव टू लॉग टर्म्स और उसके बीच में प्लस हुआ तो मैं कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर माइनस हुआ तो मैं कंबाइन करके डिवाइड कर सकता हूँ. बट अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बीच में डिवीजन है, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, उसको एज इट इज ही मुझे रखना पड़ेगा. Okay, fine. Now moving ahead, we will solve few problems. If you all have textbook, take out that exercise 6.1, question number 20. Write the following expressions as a sum or a difference of logarithm. Sum or difference of logarithm. So let's do these problems now. Question number 20, 6.1. Okay. Let's come to the first question. Log of, sorry, PQ upon RS. The question is converted into plus minus, जो भी कर सकते हैं. Okay. All of you please pay attention. यहाँ से मेन हमारा चैप्टर का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है. अभी देखो यहाँ पर लॉग का कोई बेस दिया है क्या बच्चों? इज देयर एनी बेस टू द लॉग? चैप्टर नंबर 6, base is not given, so base is considered to be e, right? Not given means it is considered to be e, but वो लोग ने नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे. समझ में आ रही है? तो पहले क्या होगा, हम अप्लाई करेंगे रूल log m अपॉन n का. log m अपॉन n क्या होता है? log m minus log n. So it can be written as log m, m is pq, minus log rs. पहला रूल हुआ लॉ ऑफ क्वोशेंट. इसके बाद अब ये जो log pq है उसमें p इंटू क्यू है ना, मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन में log क्या करता है? सेपरेट हो जाता है, log p प्लस log q हो जाता है और बीच में प्लस साइन आ जाता है. सिमिलरली log rs में क्या होगा? तो log r प्लस log s हो जाएगा. मैं हर जगह बेस इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में भी बेस नहीं लिखा था. अगर क्वेश्चन में बेस मेंशन किया रहता तो मैं भी हर जगह बेस लिखता. अभी हर जगह बेस ई है, ब्रैकेट ओपन किया, इट बिकम्स log p प्लस log q, माइनस अंदर गया तो साइन चेंज, माइनस log r माइनस log s, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर.
I hope everyone clear with this first problem. Very simple. Very good. Let us do few more problems then. B. कहीं भी आपको नहीं समझ में आए तुरंत पूछो. Log of, I'm little bit fast now. Square root of x into cube root of y. बताओ पहले कौन सा रूल अप्लाई करूं मैं? Which rule I should apply? Come on, tell me fast. Come on. Product, quotient, exponent. क्या रूल अप्लाई करूं? Law of. Come on. बहुत टाइम ले रहे हो आप लोग. ऑब्वियसली प्रोडक्ट, क्योंकि सर यहाँ पर एक नंबर है इनटू दूसरा नंबर है, लॉग के अंदर प्रोडक्ट होगा तो हम सेपरेट करेंगे प्लस में. तो पहला टर्म हो जाएगा लॉग रूट एक्स प्लस लॉग क्यूब रूट वाई. अब क्या करेंगे? तो रूट एक्स का हम सबको मीनिंग मालूम है कि रूट एक्स का मतलब होता है x रेज टू 1/2. वैसे ही क्यूब रूट का मतलब मालूम है y रेज टू 1/3. राइट? ये सबको मालूम होना चाहिए. स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3. राइट? अब ये जो पावर है इसमें अब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. तो वो पावर जो है वो नीचे आ जाएगा उसके आगे, तो ये हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1/3 log y. और ये आपका फाइनल आंसर हो गया. क्लियर एवरीवन? वेरी गुड. सी. लिखने का कोई घाई मत करो, पहले समझ लो. ln ऑफ a क्यूब a minus 2 the whole square root of b square plus 5. Tell me which law I should apply first. Which law I should apply first? Yes, quotient. पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एक्सपोनेंट. ठीक है, ऑर्डर. तो ln ऑफ m अपॉन n है तो सेपरेट होगा विथ माइनस. तो ये हो जाएगा ln ऑफ न्यूमरेटर a क्यूब a माइनस 2 द होल स्क्वायर. ln ऑफ m हो गया माइनस ln ऑफ रूट बी स्क्वायर प्लस 5. तो पहले हमने लगाया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ क्वोशंट. ओके. अभी उसके बाद क्या होगा? हाँ, ln मतलब देयर इज अ बेस e, log टू द बेस e. बट ln लिखा तो हम ln नहीं लिखेंगे ना, क्यों उसको चेंज करना है? ओके. अभी आगे क्या करेंगे हम लोग? तो यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन है. a क्यूब एक टर्म है और दूसरा टर्म a माइनस 2 द होल स्क्वायर है. दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है. उसामा, आई थिंक आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है, इसके लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप. राइट? कि डिवाइड रहेगा तो माइनस होगा क्या? मैंने आज का लेक्चर भी उसी से स्टार्ट किया है. तो यहां पर तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा अलग अलग. तो ये क्या हो जाएगा देखो जरा. ln ऑफ a क्यूब होगा अलग प्लस ln ऑफ a माइनस 2 द होल स्क्वायर होगा. सबको ये फर्स्ट टर्म का सेपरेशन समझ में आया? अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में क्या रूल लगाएंगे? तो दूसरा ब्रैकेट में तो सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, उसमें कोई लॉ ऑफ प्रोडक्ट और लॉ ऑफ क्वोशंट नहीं लगेगा. उसको हम फिलहाल वैसा ही रखेंगे.
ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, जो रूट है उसको मैं लिख सकता हूं b² + 5 होल रेज टू 1/2। सबको समझा क्या? ओके, नाउ नेक्स्ट, यहां पर देखो ln a³ है, पावर में 3 है, ln a - 2 है, पावर में 2 है, उस पावर को मैं नीचे ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा 3 ln a प्लस ये हो जाएगा 2 ln a - 2 माइनस, अब यहां देखो बच्चों, इसको आप देख के डरो मत, ये एक ही टर्म है क्योंकि प्लस है ना, प्लस में तो ln सेपरेट नहीं होगा, तो इसके पावर में होल पावर में 1/2 है, वो 1/2 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे नहीं आएगा क्योंकि ln ओनली b² के साथ नहीं है, ln इस पूरे टर्म के साथ है, तो इस पूरे टर्म में पावर क्या है 1/2, तो वो 1/2 नीचे आएगा और ln के बाद b² + 5 ऐसा ही होगा। अब मुझे बताओ इस ln को मैं सेपरेट कर सकता हूं क्या? ln a - 2 को मैं क्या लिखूं? नहीं लिख सकता ना, क्योंकि ln के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड होता तो हम सेपरेट करते, इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, जब इसको सेपरेट ही नहीं कर सकते तो फिर b² का 2 नीचे कैसे आएगा, वो सेपरेट होता और ओनली ln b² होता तो 2 नीचे आता ना, तो बस इसको हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। Any doubt in any of this step, please see and let me know. Next question, D. ln है वापस से क्यूब रूट ऑफ x - 2 2x + 1 raised to 4 x + 4 root of 2x + 4 and the whole raised to 2। कौन सा स्टेप उसामा? सेकेंड स्टेप, ये स्टेप मल्टीप्लिकेशन है, इसको सेपरेट किया प्लस में, और ये रूट है, रूट को लिखा 1/2 ln ऑफ xy। आप लास्ट लेक्चर थे क्या उसामा? तो फिर यानी तुमने रिवाइज नहीं किया, लेक्चर अपलोड भी कर दिया है, आपको कुछ नहीं समझा रहेगा तो वापस आप देख भी सकते थे, बट आपने रिवाइज नहीं किया, इसके लिए आपको इतने डाउट्स आ रहे हैं। तो ये तो सिंपल स्टेप्स है ना, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए था। तो प्लीज डू रिवाइज नेक्स्ट टाइम एंड कम। चलो यहाँ पर बताओ मुझे, फर्स्ट कौन सा रूल अप्लाई होगा? विच रूल आई शुड अप्लाई हियर? यस, नॉट क्वोशंट। वाई? बिकॉज क्वोशंट अप्लाई करने के लिए 2 नहीं होना चाहिए था ना, log m/n होगा तो होता है, लेकिन इधर तो पावर है, तो पहले इस पावर को यहां से हटाना पड़ेगा। देखो ये, अब ये पावर के लिए तो ये एक ही टर्म है ना, इस पूरे के ऊपर 2 है, राइट? या तो इस पावर को सबको दे दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ना, पावर सबको जाएगा, या तो ऐसा कर दो, या तो पहले उस 2 को बाहर ले लो, तो मैं पहली बाहर ले लेता हूं, तो फर्स्ट स्टेप होगा 2 ln and inside bracket everything is same, x - 2 का क्यूब रूट है तो मैंने उसको 1/3 लिख के रख दिया, 2x + 1 raised to 4 को ऐसे ही लिखा, x + 4 को ऐसे ही लिखा, एंड 2x + 4 raised रूट को 1/2 लिखा।
ऐसे ये ब्रैकेट क्लोज होगा। अभी पहला रूल करेंगे कोशेंट, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, तो दिस डिवाइड बाय दिस, तो सेपरेट हो जाएगा विथ माइनस। तो क्या होगा, देखो 2 एज इट इज बाहर, क्योंकि वो 2 सबके साथ है ना, तो ln होगा पहले न्यूमरेटर का, x माइनस 2 रेज टू 1/3 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू 4 माइनस ln ऑफ डिनोमिनेटर x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 4 रेज टू 1/2 एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन है, तो अब मैं मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करूंगा, 2 अभी भी सबके बाहर होगा, तो ये होगा ln ऑफ x माइनस 2 रेज टू 1/3 मल्टीप्लिकेशन विल बिकम प्लस ln ऑफ 2x प्लस 1 रेज टू 4 इन वन ब्रैकेट माइनस सेकेंड वाला भी सेपरेट हो जाएगा, ln ऑफ x प्लस 4 प्लस ln ऑफ 2x प्लस 4 रेज टू 1/2 हो जाएगा, एंड देन बिगर ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ जो पावर है उस पावर को हम नीचे लिख लेंगे, अभी भी ये 2 बाहर ही होगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/3 नीचे आ जाएगा, तो 1/3 ln ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 ln 2x प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस अंदर जाएगा, तो पहला टर्म तो एज इट इज होगा माइनस ln x प्लस 4 माइनस 1/2 नीचे आएगा, 1/2 ln 2x प्लस 4 एंड देन द ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज ln के अंदर जो है वो प्लस माइनस में है, प्लस माइनस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब बस ये जो 2 है उस 2 का अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2/3 ln x माइनस 2, 2 4 ज़ा 8 ln 2x प्लस 1 माइनस 2 ln x प्लस 4, 2/2 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली ln 2x प्लस 4 बच गया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। Please let me know if any problem in any of the steps. Clear to all? फाइन। अभी आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट, सपोज अभी ये सब तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने लिखा, बट सपोज आपको फाइंड करना है लॉग ऑफ a रेज टू 2, b रेज टू 3, c रेज टू 8, d रेज टू 4, e रेज टू 7। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो नॉर्मली पहले हम डिवाइड करेंगे, सेपरेट होगा तो माइनस में आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन रूल करेंगे, फिर एक्सपोनेंट रूल। हम ये सारी चीजें वन स्टेप में कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? जो भी न्यूमरेटर में है वो मल्टीप्लिकेशन ही होगा,
तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करके उसको हम ऐड कर देंगे, और जो भी डिनोमिनेटर में है वो सबके सब डिवीजन हो रहे हैं, तो है तो वो मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, बट माइनस बाहर आता है, इसके लिए दोनों के दोनों टर्म माइनस कर देंगे। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे आंसर? लॉग ए स्क्वायर डायरेक्ट, तो लॉग ए स्क्वायर हो जाएगा 2 लॉग ए, क्योंकि एक्सपोनेंट भी तो अप्लाई हो जाएगा ना, 2 नीचे आ जाएगा, प्लस क्योंकि ऊपर है मल्टीप्लिकेशन है 3 लॉग बी, प्लस 8 विल कम डाउन 8 लॉग सी। देन जैसे डिवाइड वाले टर्म को लिखने जाओगे माइनस 4 लॉग डी, वापस से माइनस। आप बोलोगे सर प्लस होना चाहिए ना, बराबर बोल रहे हो आप, प्लस ही है वो, बट डिवीजन के बाहर माइनस है ना, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस होने दो, बट बाहर माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा। इसके लिए हमेशा आपको ये माइनस ही लिखना है, 7 लॉग ई। हो गया आंसर इन 1 स्टेप। क्लियर ऑल ऑफ यू? So this way we can do the calculations directly in 1 step. Fine. So this question is completed now. Question number 20. Now question number 21. Write the following expression as a single logarithm. पिछले प्रॉब्लम में क्या था? सिंगल लोगैरिथम था, उसको हमने सेपरेट करके प्लस माइनस में लिखा। अभी ये एक्सप्रेशंस है, इसको हमको सिंगल लोगैरिथम में कन्वर्ट करना है। सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम नाउ। Question number 21. First, 5 log x 7 log y minus log z. Now you know that whenever you want to convert them into a single logarithm, you should either have log m plus log n or log m minus log n, then only it can be multiplied or divided, isn't it? तो यहाँ पर सब प्लस माइनस में ही है, बट log m प्लस log n अप्लाई करने के लिए हमको ये 5 यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट्स को उसके पोजीशंस पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर 5 प्लस ये हो जाएगा log ऑफ y टू द पावर 7। log z के आगे कुछ भी नहीं है, उसको एज इट इज रख दिया। अब अगर मैं लंबे स्टेप में करूँ तो पहले मैं प्लस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगा, तो ये जो प्लस में टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x रेज टू 5 y रेज टू 7 माइनस लॉग z एज इट इज, और अब ये माइनस है तो अब ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ x रेज टू 5 y रेज टू 7 अपॉन z। चाहिए तो मैं इसके बाद डायरेक्टली ये लिख सकता था, जो प्लस में है वो न्यूमरेटर में, जो माइनस में है वो डिनोमिनेटर में। दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? सिंगल लॉग टर्म कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, 1/3 log of x minus 1 1/2 log of x. First step, you all know 1/3 will go there, so it will be x minus 1 raised to 1/3. 1/2 will go there, x raised to 1/2, प्लस है तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा log of x minus 1 raised to 1/3 इंटू एक्स रेज टू 1/2। ये आपका आंसर। हाँ, अगर आपको रूट के टर्म्स में लिखना है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, रेज टू 1/3 मतलब क्यूब रूट हो गया ये, और रेज टू 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हो गया ये आपका फाइनल आंसर।
Clear? Next, see ln of x plus 2, ln of x minus 2, 3 times ln of x plus 5. सारे टर्म में ln ही है, एक टर्म में केवल 3 है, तो पहले उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, लॉग एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया तो 3 उधर जाके पावर में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, जो प्लस में है ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, प्लस में है तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और जो माइनस में उसको डिवाइड कर दो, x प्लस 5 द होल रेज टू 3। ज़्यादा से ज़्यादा x प्लस 2 एक्स माइनस 2 में a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये आपका सिंगल लॉग टर्म में कन्वर्ट हो गया। Is it done, students? Understood all the 3 questions? How to convert them into a single log term? Good. Next question now. Question number 22. It is given that log 2 is a and log 3 is b. Write log root 96 in terms of a and b. Okay. How do we write that? Let's see. Log root 96. Question number 22. तो पहले मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ, लॉग रूट 96। ठीक है, अभी सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 96 है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, बिकॉज log 2 और log 3 ऐसा a और b का वैल्यू दिया है, तो 96 को हमने फैक्टराइज किया, सो 2 4 जा 2 8 जा 2 24 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, right? So it is 2 into 2 into 2 into 2 into 2, यानी 2 raised to 5 है वो, ठीक है। तो log of 96 is 2 raised to 5 into 3 है, ठीक है। इसका रूट मतलब 1/2। अब इसके दो आंसर है, या तो 1/2 को पहले बाहर ले लो और फिर log ऑफ mn अप्लाई करो, या तो 1/2 को अंदर ले लो ना डायरेक्टली, वो भी चलेगा, राइट? सो इट्स अप टू यू, या तो आप पहले ही लिख लेते 96 को ही पहले 1/2 लिख ले रहे थे, हाँ? जैसे यहाँ पर अगर मैंने इंटरमीडिएट एक स्टेप डाला, log ऑफ 96 रेज टू 1/2, फिर उस 1/2 को इधर लिख दिया log 96। तो बहुत सारे वेज है स्टूडेंट्स इसको करने के, इट्स नॉट दैट दिस द ओनली वे। अब मैंने 1/2 को अंदर लेकर गया, 1/2 अंदर जाएगा तो क्या होगा, सबको जाएगा, सबके पावर में जाएगा, तो 2 रेज टू 5 ऑलरेडी था, 1/2 गया तो 5/2 हो जाएगा, 3 के पास गया तो 1/2 हो जाएगा 3 के पावर में। अब ये नॉर्मल लॉग एम एन में कन्वर्ट हो गया, लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। अब ये जो पावर है उसको हमने नीचे लिख दिया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो 5/2 log 2 हो जाएगा एंड 1/2 log 3 हो जाएगा। नाउ वी नो दैट log 2 is a, log 3 is b, so replacing them by a and b, so it is 5/2a plus 1/2b. I can take 1/2 common, so it is 5a plus b is your final answer. Have you all understood? It's very simple.
अभी कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा शायद कि सर 96 का रूट ही निकाल लो ना। जैसे यहाँ पर देखो रूट 96 था, तो आपको क्या आया, 96 में आया 2 2 2 2 2, 5 टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 3। तो कुछ बच्चों ने शायद ऐसा लिखा होगा कि सर ये 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया, ये 2 में से एक 2 बाहर आ गया, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया बाहर। तो आप लिखोगे 4 और अंदर क्या होगा, रूट ऑफ 2 इंटू 3, यस और नो। तो उसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। रूट को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, तो 2 के पास भी रूट है और 3 के पास भी रूट है, ऐसा लिख सकता हूँ। फिर मैं अब लॉग को सेपरेट करूँगा, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस में हो जाएगा, तो पहला टर्म होगा log 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा होगा log 2 के पावर में 1/2 और तीसरा टर्म होगा log 3 के पावर में 1/2। अब ये जो पावर है उस पावर को हम नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 log 2, ये हो जाएगा 1/2 log 2, ये हो जाएगा 1/2 log 3। सब्स्टिट्यूट कर दो ना a और b, तो 2a हो गया, ये 1/2 a हो गया, ये 1/2 b हो गया। इसको ऐड सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1a 5a/2 प्लस 1/2 b, 1/2 कॉमन, तो 5a प्लस b, still the answer is going to be the same. So you do by any of the method. मैथ्स में तो आप कोई भी मेथड से करो सॉल्व, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आंसर्स भी आपके सेम आने वाले। कभी कोई मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई दूसरा कोई शॉर्टकट हो सकता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। So this is question number 22. Now we have question number 3 which we want to prove. सबको प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल है ये सारे प्रूफ्स। पहला तो प्रॉपर्टी है, कैन यू सी दैट? यस, b रेज टू log ऑफ b टू द a टू द बेस b, तो प्रॉपर्टी है ना, उसको क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट स्टेप में ही प्रूफ हो गया वो, बिकॉज दैट्स द रूल, राइट। सेकेंड थर्ड देख लेते हैं। ऐसे फर्स्ट को भी प्रूफ करना है तो हम कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी उसका प्रूफ कल के लेक्चर में बताया था। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट क्वेश्चन टू प्रूव दैट b raised to log of a to the base b is a. Proof. Let a to the power x is b. एज्यूम किया, इसको लोगारिथम में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल टू होगा log of b to the base a, calling this as 1 and this is 2. Substitute, put 2 in 1, 2 को 1 में पुट करो, कहाँ पर पुट करोगे, x के जगह पर इस x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। सो व्हाट विल यू गेट, a रेज टू x, x क्या है, log of b to the base a is equal to b, hence proved। यही तो प्रूफ करना था, देख लो। सो फर्स्ट प्रूव हो गया, क्लियर, गुड। सेकेंड नाउ, to prove that log of a, टेक्स्ट बुक में थोड़ा प्रिंटिंग आगे पीछे लिखा है, log a है और बेस में b रेज टू m है,
हमको प्रूफ करना है 1/m log a to the base b। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लॉग है a का और बेस में है b रेज टू m। कैन वी अप्लाई द शिफ्ट ऑफ बेस लॉ हियर स्टूडेंट्स? शिफ्ट ऑफ बेस लॉ, shift of base law says that if you have a log a to the base b, you can separate them। तो सेपरेट किया तो क्या होगा, log a सेपरेट होगा और log b रेज टू m सेपरेट होगा। बेस नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि बेस को हम ई कंसीडर कर रहे हैं। अभी न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो ऐसा ही रहेगा, बट डिनोमिनेटर में ये जो पावर है दैट कैन कम डाउन। तो ये हो सकता है m log b। सबको समझ में आ रहा है? एंड नाउ can I again merge this log a upon log b and I just write them as log a to the base b, keeping 1 upon m as it is? Please students, do you agree? log a upon log b में वापस शिफ्ट ऑफ बेस लॉ का ऑपोजिट है ना, इनवर्स अप्लाई कर दिया। तो यही तो आपका राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर ऑल ऑफ यू? या थर्ड प्रूफ, to prove that it's a to the power of log b to the base c, b to the power of log a to the base c, we have to prove that they are equal। महफूज का क्वेश्चन है वाई बी गोज टू द बेस। वही तो रूल है, शिफ्ट ऑफ बेस लॉ है ये। देर इज अ रूल विच सेज दैट अगर आपके पास ऐसा कोई टर्म है, log m है और बेस n है, यू कैन सेपरेट देम एंड राइट लाइक दिस, एंड इट इज वाइस वर्सा ट्रू। मतलब ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं। हमने उल्टा वाला यूज किया, log a upon log b था, उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया, log a to the base b। चलो अभी ये बताओ कैसे करेंगे प्रूफ। LHS a रेज टू log of b to the base c है। हाउ विल यू सॉल्व दिस? a रेज टू की जगह b रेज टू आना चाहिए, कैसे करेंगे? थिंक। Think about this problem. Tell me how will you solve? हेलो एवरीवन, अरे सुनाई दे रहा है आप लोग को मेरी आवाज? बेस किधर सेम है शिवम? देखो, वेयर डू वी हैव सेम बेस? बेस तो डिफरेंट है।
come on, tell me. चलो यहाँ देखो, कोई क्लू नहीं आ रहा है कि किसी को. So can we first apply the shift of base law? Like it is log b to the base ca, which can be written as log b upon log c. Can we do like this? Now think we need a to the right hand side. It means here we don't have any a term. तो हमको a तो कैसे भी इंट्रोड्यूस करना है इसके अंदर, राइट? a अगर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो सॉल्व ही नहीं होगा. तो a को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग? How will you introduce a? हर्षित ने बोला introduce a with log a to the base a. That's absolutely fine, but can you see log b and log c? They don't have base as a, na? They have base as e. So we have to think in that direction. चलो नो प्रॉब्लम. यहाँ ध्यान से देखो. एवरीवन पे अटेंशन. ये मैं एक कुछ लिखने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो. अभी हमको मालूम है ये टर्म देखकर कि इन दोनों टर्म में लॉग का बेस ई है, राइट? अभी ये जो ए है इसके साथ मैं कुछ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना. कैन वी राइट ए as e raised to log a to the base e? ध्यान से सोचना और बोलना यस और नो. थिंक. सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी. इफ वी हैव अ नंबर, उसके पावर में अगर कोई लॉग है और उसका भी बेस वही है जो यहाँ पर है, तो आंसर बस ये वाला होता है. इज इट राइट स्टूडेंट्स? बट द आंसर विल रिमेन ए. दैट्स ट्रू. अच्छा, इसका मतलब ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ई रेज टू लॉग ए simply, not writing base e. Yes or no? Come on. Because even if I don't write anything, it's considered to be base e only. So a can be written like this. तो यहाँ पर ये जो a है उसको मैं इससे रिप्लेस करता हूँ. देखो क्या होगा. a रेज टू, तो a क्या है? e log a. इसके पावर में कौन है? log b इंटू log c. log b upon log c, sorry. Is it, have you all understood this step? यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अभी हमको लॉ ऑफ इंडाइसिस मालूम है ना. पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई ना. a रेज टू m रेज टू n क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो इसको मैंने लिख दिया e के पावर में मल्टीप्लाई log a इंटू log b अपॉन log c. क्लियर? पावर मल्टीप्लाई.
अभी मैं राइट हैंड साइड देखता हूँ, मुझे राइट हैंड साइड में log a टू द बेस c चाहिए, मतलब log a अपॉन log c चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखना जरा ध्यान से, कैन वी राइट लाइक दिस, e एज इट इज, log a इंटू log b अपॉन log c को मैंने log b को इधर ले लिया और उधर log a अपॉन log c लिखा, कोई प्रॉब्लम? अरे a इंटू बी लिखो या b इंटू a लिखो, इट इज वन एंड सेम थिंग ना, राइट? अच्छा, फिर वापस से मैं लॉ ऑफ इंडाइसिस का वो वाला स्टेप जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया था, वापस वो स्टेप बैक ले ले रहा हूँ। लॉग बी को इधर ले लिया ई के पावर में, और फिर उसके पावर में लॉग ए अपॉन लॉग सी। कैन वी राइट लाइक दिस? And now if you look at this bracket, here there is no base, matlab base is e. If base is e, this entire bracket can be treated as b because e सेम है। और ये अब हम लिख सकते हैं log of a to the base c, and this is what right hand side is. अरे समझा क्या? थोड़ा सा इधर उधर एडजस्टमेंट किया and we got the answer. Very good. Now after 23, 24th नहीं करना है हमको, 25th करना है। 25th now. So let's see what is 25th. It is solve for x. Solve for x मतलब इन ये इक्वेशंस दिया हुआ है, हमको उसका यूज करके x, y, whatever variable is there, we have to find the variable of the value of that variable, right? So question number 24th हमको नहीं करना है, that is related with another concept. We are now doing 25th. Solve for x, first question A. The question is log 2 plus log x plus 3 minus log 3x minus 5 equal to log 3। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो इक्वल टू है तो लास्ट प्रॉपर्टी याद करो, लास्ट प्रॉपर्टी log m equal to log n, then m equal to n, something like that we have to come. तो यू कैन सी देयर इज अ सिंगल टर्म इन द राइट हैंड साइड, तो वहां तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको लेफ्ट को सॉल्व करना है, राइट? हाँ, हम लेफ्ट से किसी को राइट में लेके जाना चाहते हैं तो वो छूट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जैसे log 2 है, नंबर है, उसको इधर भेजना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, उधर ही रखना चाहते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अप टू यू। ओके, सो क्योंकि दोनों वे से सॉल्व कर सकते हो। सपोज log 2 को मैं उधर लेकर गया तो यहाँ पर क्या आएगा, log of x plus 3 minus log of 3x minus 5 इक्वल टू log 3 ऑलरेडी इस साइड था, log 2 उधर गया, वो हो गया माइनस log 2। अब आप दोनों साइड देख सकते हो, log m minus log n, log m minus log n, which can be written as log of m upon n, isn't it? तो ये हो जाएगा log of x plus 3। आप बोलोगे सर बेस नहीं लिख रहा हूँ, अरे बेस क्वेश्चन में ही नहीं दिया है, बेस ई लिखा है, तो हमको भी क्यों बार बार लिखना है ई? डोंट राइट दैट। नाउ डोंट यू थिंक नाउ यू हैव रीच्ड टू दैट स्टेप of comparing two log terms? Last property, log m equal to log n, therefore comparing both sides, what do we get? Log log will vanish and then we will get x plus 3 upon 3x minus 5 is 3 by 2. Now this is normal algebraic problem, cross multiply and get the answer, right? So 2 will multiply there, 2x plus 2 3s are 6,
3 3 सा 9x माइनस 15, 15 को इधर लाया, 6 प्लस 15, 2x को उधर लेकर गया, 9x माइनस 2x, 21 is 7x, x is 3, and this is your final answer. Have you all understood? Very simple, students, right? Very good. Next, B. 2 log of x to the base 10 equal to 1 plus log of x plus 11 by 10 to the base 10. अब यहाँ पर base is given, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखोगे, unlike last question, in last question everywhere there was a log term, so it was easy to do the calculation with log m plus n, log m minus log n. Here we have log terms, but one term doesn't contain any log, right? हाँ, कॉमन लॉग है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यहाँ पर बेस मेंशन्ड है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पर एक टर्म में लॉग नहीं है, अभी लॉग नहीं है तो मैं इसको इसके साथ सॉल्व कैसे कर सकता हूँ ना। अगर यहाँ पर लॉग होता लॉग एम, तो लॉग एम प्लस लॉग एन तो फिर मल्टीप्लाई होता ना, तो वहां पर तो कुछ है नहीं, तो अब नहीं है, लेकिन सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए, तो मैं उधर जबरदस्ती किसी को तो लेकर आऊंगा। कैसे लेकर आऊंगा? क्या मैं 1 के जगह log 20 to the base 20 लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ log 20 to the base 20? Yes, because that's a property. Log of any number to the base of same number is always 1. If I want to write log 200 to the base 200, can we write like this? Yes. If I want to write log 2000 to the base log 2000, can we write? Yes. अरे बट मैं 20, 200, 2000 क्यों लिखूंगा? जब बेस यहाँ पर बाकी जगह 10 लिखा है तो मैं यहाँ पर 10 ही लिखूंगा ना, कि मुझे कैलकुलेशन करने को इजी हो जाए। अरे समझा क्या? बाकी सब टर्म एज इट इज। यहाँ पर एक्सपोनेंट को पावर में लेके चला गया मैं, 2 को x के पावर में चला गया मैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, आई होप सबको समझ में आया होगा। 1 को रिप्लेस किया है। अभी आप देख सकते हो ये है log a प्लस log b, log a प्लस log b बेस सेम है, इसके लिए ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो लेफ्ट का जो टर्म है उसको एज इट इज रखा, यहाँ पर मैंने log mn अप्लाई किया, तो log m इंटू एन हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस 11 बाई 10 एंड द बेस इज 10। ये सबको राइट साइड समझ में आया? कैसे किया मल्टीप्लाई एवरीवन? ओके, अभी उस 10 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हम लोग। 10 का मल्टीप्लाई अंदर करो, क्या होगा जरा देखो ध्यान से। लेफ्ट साइड एज इट इज, 10 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10 इंटू 11 बाई 10, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, 11 बचेगा, बेस 10। नाउ हैव यू अचीव्ड log m इक्वल टू log n वाला स्टेप? दोनों का बेस 10 है, कंपेयरिंग कर सकते हैं हम लोग, comparing both sides, I will get x square is equal to 10x प्लस 11। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक है, सबको इस साइड लेकर आएंगे। 11 का ऐसा फैक्टर जो 10 देना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पर, 11 वन ज़ा माइनस 11 प्लस 1x, 8 9 10 में ये सब हमने किया हुआ है।
तो यहाँ पर हमको x के दो आंसर मिल गए स्टूडेंट्स, x 11, x -1, राइट है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? But now this is the chapter which we are doing is a logarithmic chapter, right? ये इक्वेशंस के दो आंसर हैं, बट कभी भी लॉग में जो भी आंसर आएगा उसको एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेना है। आपको x के आंसर आए हैं 11 एंड -1, राइट? तो अगर x की जगह 11 हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर x की जगह -1 हुआ तो log -1 तो डिफाइंड ही नहीं होता ना बच्चों, राइट? इक्वेशन में log x है, तो इसका मतलब जो वो -1 हमको एक आंसर आया है क्वाड्रेटिक का, दो आंसर होते हैं, बट इस इक्वेशन के लिए एक आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो हम रीजन लिख देंगे कि सिंस log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल and therefore x cannot be -1, so the only answer which you will have is x is equal to 11. I hope it's clear to all. Very good. Next problem, C. We have log x to the base 2, log x to the base 4, log x to the base 16, 21/4. लेफ्ट साइड में तीनों टर्म लॉग में दिख रहे हैं. विच रूल आई शुड अप्लाई? कम ऑन, टेल मी फास्ट. विच रूल आई शुड अप्लाई? प्लस 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 है सब. Yes, come on students. Can we apply the product rule here? Log m plus log n as log mn. Jayashree saying no. Why can't we apply? Premit saying yes. Why can't we apply, students? Very good, because the bases are not same, right? log m plus log n तभी होता था mn जब बेस सेम होता था. यहाँ पर बेस डिफरेंट है, तो देख के प्लस इजी लग रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, बट इट कैन नॉट बी डन. तो अब क्या करेंगे हम इसमें शिफ्ट ऑफ बेस लॉ अप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा log x अपॉन log 2. ये हो जाएगा log x अपॉन log 4. ध्यान से देखो, ये हो जाएगा log x अपॉन log 16 इक्वल टू 21/4. क्लियर? ओके. अभी log x को तो कुछ नहीं कर सकते, log 2 को भी कुछ नहीं कर सकते, सेकेंड टर्म में log x को कुछ नहीं कर सकते. log 4 इज 2 raised to 2. 2 raised to 2, raised to 2 को नीचे लेकर आ गया 2 log 2. समझा क्या पब्लिक? Understood everyone? 2 square na 2 comes down. Similarly, can you tell me what can we write for log 16 then? Come on, fast. 16 is 2 raised to, yes, 4, not 2 log 4. Prem, wrong. 4 raised to 2 लिख रहे हो तुम, वो भी राइट है, बट 4 में क्यों कन्वर्ट करो ना, 2 में कन्वर्ट करो ना. 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 2 log 4 हो गया, बट 2 raised to 4 लिखूंगा तो 4 log 2 हो जाएगा ना. और बाकी के दो टर्म में मुझे log 2 मिला है, तो आई विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू log 2 ना. समझे क्या पब्लिक? 4 स्क्वायर भी लिख सकता हूं मैं, बट मैं 2 raised to 4 लिखूंगा, एंड देन 4 को मैं नीचे लेकर आऊंगा, तो 4 log 2 हो जाएगा. रीजन, बिकॉज अदर टर्म्स हैविंग टू log 2 इक्वल टू 21/4. Now, don't you think
every term on the left hand side has log x upon log 2 common. So I took log x upon log 2 common. What will be left if I take common? फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा, सेकेंड टर्म में 1/2 बचेगा और थर्ड टर्म में 1/4 बचेगा, इज 21/4। नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 1। एलसीएम तो आता ही होगा आपको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 + 2 + 1, it's 7/4। Is it clear to all? 4 कैंसिल, log 2 को उस साइड लेकर चला गया मैं, इधर बचा 7 log x, उधर बचा 21 log 2। ठीक है, 7 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा। तो अभी अपने पास बचा log x = 3 log 2। ये 3 को 2 के पावर में लेके जाओ, देखो क्या log x = log of 2⁻³ and now both sides log, so x is equal to 2⁻³, so the answer of x will be 8। Please go through all the steps and if you have any doubt please do ask। Have you all understood? सबसे पहले हमने शिफ्ट ऑफ बेस लॉ अप्लाई किया, फिर डिनोमिनेटर में जो 2 के पावर्स थे उसको 2 के पावर्स में कन्वर्ट करके हमने सॉल्व किया। प्लीज चेक इट आउट। ईशान का क्वेश्चन है साइन कैंसिल नहीं हो सकता है तो लॉग कैसे? मैं किधर बोल रहा हूँ लॉग कैंसिल हो रहा है? यहाँ पर मैं किधर बोल रहा हूँ लॉग कैंसिल? मैं बोल रहा हूँ कंपेयर किया लॉग को मैंने। आई कंपेयर्ड ना, द वे आई कंपेयर्ड साइन थीटा इज 1/√2। तो फिर मैं लिखता हूँ ना साइन थीटा इज साइन 45। देन आई कंपेयर एंड आई गेट थीटा इज 45। कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 है तो इसका मतलब थीटा 45 ही होगा ना। वैसे ही अगर log x का वैल्यू log 8 से इक्वल है, इसका मतलब log x 8 होगा, तभी तो log x का वैल्यू log 8 के इक्वल होगा ना। So it is not cancelled, it is comparing। Okay, ये साइन a इक्वल टू साइन b होगा तो भी a इक्वल टू b होगा। उसका भी रीजन है नॉट कैंसल्ड साइन कंपेयरिंग साइन a एंड साइन b, we get a इक्वल टू b। बट साइन कैसा होता है? पीरियोडिक इन नेचर होता है, राइट? इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है ना कि थीटा का वैल्यू 45 ही होगा, क्योंकि बहुत सारे और भी वैल्यूज पे साइन का वैल्यू 1/√2 हो सकता है। एक आंसर है साइन 45 इज 1/√2, बट हमने लर्न किया था ना, याद है आपको ना, 360 + 45, तो 405 पे भी साइन का वैल्यू 1/√2 ही होता है। तो एक आंसर a इक्वल टू b होगा, बट ऐसे बहुत सारे साइन में पॉसिबल है, लॉग में पॉसिबल नहीं है। log x इक्वल टू log 8 है तो x इक्वल टू 80 होगा, और कोई दूसरा वैल्यूज पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सो इट्स क्लियर। सो वी हैव डन दिस प्रॉब्लम आल्सो। सी नाउ नेक्स्ट D।
क्वेश्चन इज x प्लस log of 1 plus 2 raised to x to the base 10 x into log 5 to the base 10. Now here also it is exactly the same type of problem, but the only issue here is the one term which do not have log, and that is x. Yes or no बच्चों? तो अभी you know that when we don't have log and we need to bring log, then how do we write? तो x मतलब x into 1 ना, x into 1 है तो उस 1 के जगह मैंने log 10 to the base 10 लिख दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, अभी भी वो x ही है ना, x into 1, बाकी टर्म एज इट इज. हाँ, जैसे ये x पावर में लेके जा सकते हैं हम लोग, ये 5 raised to x. सबको ये स्टेप समझ में आया? दोनों साइड log a प्लस log b दिख रहा है. लेफ्ट साइड में अप्लाई करने के लिए अभी एक स्टेप बाकी है, x को अपने को पावर में लेके जाना पड़ेगा, तो पहले वो कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा log ऑफ 10 raised to x to the base 10, बाकी सब एज इट इज. एक साथ ही दोनों साइड रूल अप्लाई करते हैं. अभी कर सकते हैं राइट में, बट अगले स्टेप में करते हैं. Now it is log m plus log n in the left hand side and the right hand side also. तो log mn होगा 10 raised to x into to the base 10, मल्टीप्लाई कर दिया. राइट साइड में भी वही होगा, 5 raised to x into 6 to the base 10 हो गया. अगेन दोनों साइड लॉग लॉग आया, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो लॉग लॉग निकल जाएगा कंपेयर करने पर. अपने पास बचेगा 10 raised to x 1 plus 2 raised to x 5 raised to x into 6. सबको ये इस इक्वेशन तक समझ में आया कैसे मैंने लाया है? Very good. Now, students, we all know that 10 raised to x है ना, 10 को मैं 5 into 2 लिख सकता हूँ ना, 5 into 2 is 10, तो उसके पावर में x होगा. मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए पावर दोनों को जाएगा, 5 raised to x into 2 raised to x, right? So it means 10 raised to x can be written as 5 raised to x into 2 raised to x into ब्रैकेट में 1 plus 2 raised to x. राइट में है 5 raised to x into 6. दोनों साइड में 5 raised to x है, 5 raised to x कैंसिल. अब हमारे पास बच जाएगा 2 raised to x 1 plus 2 raised to x equal to 6. Now to solve this equation 2 raised to x के साथ डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. इसके लिए just to solve them easier way, I am assuming 2 raised to x as m. Just my assumption to solve this equation. So if 2 raised to x is m, then my equation becomes m 1 plus m equal to 6. Multiplying it inside, it becomes m plus m square 6. 6 को इधर लाके अरेंज किया, m square plus m minus 6 is 0. क्वाड्रेटिक इन m. 6 का ऐसा फैक्टर 1 देना चाहिए, 3 2s plus 3 minus 2 minus 6. फर्स्ट टू टर्म्स में m कॉमन, m plus 3 minus 2 common, sign will change, m plus 3. I'll get here m plus 3 as one factor and m minus 2 as another factor. Comparing them with 0, one answer I will get m as minus 3 and another I will get as m equal to 2. But m was not the original variable. Original variable was x. m के जगह वापस बैक रिप्लेस किया, 2 raised to x is m.
तो एक जगह आया 2 रेज टू एक्स इज -3, एक जगह आया 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? बिकॉज याद करो a एंड b दोनों ग्रेटर देन 0 होते थे, डू यू रिमेंबर? बिकॉज इसका लॉग जब हम निकालेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, तो लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, राइट? इसके लिए 2 रेज टू एक्स कभी भी -3 नहीं हो सकता, तो फिर ओनली आंसर वी गॉट एज 2 रेज टू एक्स इज 2। बट हाउ डू वी सॉल्व दिस? 2 रेज टू एक्स एज इट इज, 2 मतलब 2 रेज टू 1, एंड देन आई विल कंपेयर देम। तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, इसके लिए x का आंसर होगा 1। समझा सबको? Very good. So this way we have completed question number 25th also. So 21, 20, 23, 25th, these are very good questions. अभी तक जो भी हम कर रहे हैं ना, हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज लर्न करने का फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट? अभी तक हमने मेन लोगैरिथम स्टार्ट नहीं किया है, जो कैलकुलेशन वाला लोगैरिथम है, जो एक्चुअली फिजिक्स केमिस्ट्री में आप यूज करने वाले हो। उधर तक पहुंचने के लिए हम लोग जस्ट अपने थोड़े फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ व्हाट वी हैव डन टुडे टिल 25th। एक बार तो आप देखकर लिखोगे, या तो अगर आपने अभी लिखा होगा मेरे साथ साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार और वापस से आप खुद से भी ट्राई करना सारे सम्स, देन इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि मतलब आपसे खुद से हो पा रहा है कि नहीं, लॉज अप्लाई हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे, राइट? सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टुडेज क्लास वॉट एवर वी हैव डन। कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं, लाइक 26, 27, 28, 3 क्वेश्चंस विल बी लेफ्ट। ऐसे ही अभी भी कर सकते हैं, 10 मिनट्स वी हैव। शुड वी डू इट राइट नाउ? सो लॉग कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हम लोग वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। कोई हाँ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब लग रहा है कि मुझे नहीं स्टार्ट करना चाहिए। देखो कोई यस नो कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं लो नहीं पड़ा हुआ कि कंटिन्यू नहीं करो। बोर हो गया, आज 2 आवर्स का लेक्चर था इसके लिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम वी विल डू 26, 27, 28। देखा, नेक्स्ट टाइम बोला तो सबका आ गया, ओके सर, यस सर, ओके सर। Fine. So please complete all these sums. I will send you the PDF. And that's all for today. Thank you very much. Take care.